આજ્ઞા ધર્મની વેલ્યુ ખરી લાઈફમાં? કેમ કેમ બોલો મોટેથી? નથી સંભળાતું નથી. તું બોલ. હે આજ્ઞા ધર્મની વેલ્યુ નથી? છે. હે છે. છે? કેટલી છે? Good. A lot. Everything. અચ્છા ઓકે. હવે તમે જ સમજાવો આજ્ઞા. ચાલો જલ્દી તો શોર્ટ, વેરી શોર્ટ. કઈ આજ્ઞા બોલતા જાઓ. બોલો બોલો. કેમ વિથ યુ? તને ખબર છે ને 5 આજ્ઞા? તો પછી Relative viewpoint થી સપના. મોટેથી બોલવાનું. Relative viewpoint થી સપના છું. રિલેટિવ વ્યૂપોઈન્ટ ટુ સપના છું ફ્રોમ ઇન્ડિયા, રાઈટ? બોલ ને. From India. ઇન્ડિયા છું. From America. Real viewpoint થી શુદ્ધાત્મા છું. રિયલ વ્યૂપોઈન્ટ થી શુદ્ધ આત્મા છું. ઓકે રાઈટ છે? હા 100% છે? આપે ને તને લાગે છે? કેટલું લાગે છે? સ્પીક લાઉડલી. તેના પપ્પા સાંભળે એવી રીતે બોલ બોલ. કેવી રીતે માઇક છે ને? હજુ તો નજીક લાગી બોલ. પપ્પા નથી સાંભળતા. મને લાગે છે રાઈટ છે. સંભળાયું? મને લાગે છે કે રાઈટ છે. તો મમ્મી નથી લાગતું એમ? સારું છે. એ તો બરોબર જ છે ને. દરેકે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પોતાને લાગવું જોઈએ. જેને લાગે તેનું સાચું એનું રાઈટ. કારણ કે એ બધા દરેકે પોતે પોતાના માટે છે. એ નહીં કે ફોર સમવન એના માટે એ રાઈટ છે. એ પોતાના માટે રાઈટ છે, ફોર વન્સ ઓન સેલ્ફ. બરોબર છે મધુભાઈ? કે ફોર સમવન એલ્સ એના માટે રાઈટ છે? પોતાના માટે. એટલે બહુ મોટી વાત. આ તો લોયર છે. હા લોયર છું. તો એને આપી દે. આ બે વ્યૂ પોઈન્ટની ઇમ્પોર્ટન્સ કેટલી ઓલ રાઈટ છે? કમ્પ્લીટ રાઈટ. એને રિમેમ્બર નથી કરવા પડતા નહીં? રિમેમ્બર કરવા પડે છે ને કે ઓટોમેટિકલી રહે છે? એટલે ઓટોમેટિકલી રહે છે. હા તારી મમ્મી નથી રહેતા? રહે છે? ઓટોમેટિકલી રહે. સાચું કહે છે સોનલબેન? એમ ઓટોમેટિકલી રહે છે. બહુ સારી વાત છે. તો ઇન બિટવીન કોઈ વખત આપણને ફીલ થાય કે આ નથી રહેતા. રાઈટ? વાય? વાય? ઓબ્સ્ટ્રક્શન છે વચમાં. એટલે સપનાનું જે ફાઇલ છે એ ફાઇલનો હિસાબ. શું કહ્યું? હિસાબ સમજાય ને? તું સાંભળે છે? એ હિસાબ એનો ટાઈમિંગ રાઈટ થતા ઇટ કમ્સ ટુ પ્લે એક્શન. અને એક્શનમાં આવતા એ ઓબ્સ્ટ્રક્શન સ્વરૂપે કામ કરે છે. હવે સમજે? એટલે આપણને લાગે કે એકચ્યુઅલી રહે છે અંદર, પરંતુ પેલું ફોર ધ ટાઈમ બિંગ પેલું ઓબ્સ્ટ્રક્શન આવ્યું અને પાસ આઉટ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણને લાગે. અને પાસ આઉટ થઈ ગયું એટલે પાછું ઓટોમેટિક રહે છે. એટલા માટે ઓટોમેટિક છે. હવે સમજાયું કે નહીં?
ત્યાં સામે કાવ છે અને હમણાં જો બસ આવી મોટી તો કાવ તો દેખીએ છીએ, પણ બસ આવે કે સાથે જ કાવ દેખાતી બંધ થાય, રાઈટ? પણ વિઝન તો ચાલુ જ છે, કાવ પણ છે ત્યાં આગળ, તો કેમ દેખાતી નથી? તો કે પેલી બસ આવી એટલે ઓબ્સ્ટ્રક્શન આવી, ટાઈમિંગ આવે ને, સમજાય છે? બસ ગઈ ફોર 2 સેકન્ડ્સ નીકળી ગઈ, કાવ દેખાઈ પાછી, એટલે ઓટોમેટિક છે. યુ ફોલો? એટલે કન્ફ્યુઝ નહીં થઈ જવાનું. શું કહ્યું? નેવર નેવર બી પોઝિટિવ. હું શુદ્ધાત્મા છું. શું કહ્યું? દેટ્સ ઇટ. એને વધારે પાક્કું ફોર્ટિફાય કરો, સોલિડ. સમજાયું ને? એટલે હું શુદ્ધાત્મા છું રહેતા પેલું ઓબ્સ્ટ્રક્શન હશે છતાં ઓબ્સ્ટ્રક્શન જેવું છે તે લાગશે નહીં તમને, અને પછી ગ્રેજ્યુઅલી તમારી આ વિઝન છે, આ તો રિલેટિવ વિઝન છે એટલે ઓબ્સ્ટ્રક્ટ થઈ જાય, પણ રિયલ વિઝનમાં ઓબ્સ્ટ્રક્શન થ્રુ પણ તમે જોઈ શકો છો. એ ઓબ્સ્ટ્રક્શન પછી થીન થઈ જાય, પતલું. ડુ યુ ફોલો? ગ્રેજ્યુઅલી આવી રીતે સોલ્વ થાય, પછી યુ કેન સી થ્રુ. એટલે પછી ઇનર વિઝન ક્લિયર થાય આપણી. ડુ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વાય? હું શુદ્ધાત્મા છું એ લાગતું હોય તે વખત મને લાગે છે ને હું શુદ્ધાત્મા છું તે વખતે. શું કહ્યું? બરોબર છે? પાક્કું? હે? આ મારા દીકરા નામ કેમ થાય છે? અરે મારા દીકરાને સારું, હું શુદ્ધાત્મા છું, પણ તરુણ દીકરાને એ ખાસ રાખવાનું. તારા બે વ્યૂ પોઈન્ટ બધા સરખા થતા જાય. તારા લાઈફમાં આ તો બને જ કરે કે પછી એના માટે આપણે કોઈને કહેવું પડે કે આવું તું બનાવ તો હું પાકો થઈ જાઉં, કે મારું વિઝન પાકું થાય. કોઈને કહેવું ના પડે, નહીં? બધું કહેવું પડે, કેમ? બને જ છે. એટલે લાઈફ ઇમ્પોર્ટન્ટ ખરી કે નહીં? એનીથિંગ હેપનિંગ એ ગુડ છે કે બેડ? હા, પણ નોન લાઇકિંગ હોય તો પણ ગુડ. તારી મમ્મીને કે નોન લાઇકિંગ હોય તો પણ ગુડ કે છોકરા જુઓ છે, રાઈટ? શ્યોર. પછી ટેસ્ટ કરશે, હે મમ્મી કે, હે? સમજાયું ને? અને લાઇકિંગ હોય તો તે પણ ગુડ. લાઇકિંગ હોય તો પછી સ્ટ્રેસમાં નહીં આવી જવાનું, પણ તો બંને. હું તો શુદ્ધાત્મા છું, આવી રીતે છે. મહેતા સાહેબ બરોબર છે ને? સરીબેન તમે અહીંયા આવી ગયા, હવે અહીંથી બેસવાના છે? हिंदी, अभी हिंदी में सत्संग चलेगा. हम हिंदी में सत्संग करें, सबकी अनुज्ञा है. हाँ, क्योंकि भरत भाई हमारे हिंदी में रिकॉर्ड करते हैं. भरत भाई की आज्ञा है कि हिंदी में सत्संग करो, राष्ट्र भाषा है. चलो दादाजी, ये आवरण के संबंध में थोड़ी स्पष्टता कीजिए. आवरण का अर्थ है हमें हमारे लिए तैयार की हुई स्क्रिप्ट के साथ वाली डायरेक्ट की हुई फिल्म. वो फिल्म तैयार की गई है, डायरेक्ट की गई है स्क्रिप्ट के साथ वाली पूरी. वो फिल्म अभी की गई है किसके लिए? दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए. तो दूसरों हमारी हंसी उड़ाते हैं तो क्या करें? नहीं, वो तो वो स्क्रिप्ट और फिल्म ही ऐसी हमने की थी, तो ऐसी आई.
यानी वो स्क्रिप्ट कैसी स्क्रिप्ट? हमने दूसरों की हंसी की उस स्क्रिप्ट के समय। सेल्फ एक्टिंग, सेल्फ डायरेक्टिंग, एवरीथिंग सेल्फ, एवरीथिंग सेल्फ। तो अभी आनी, सामने आनी, तो देखनी इसको, किसको देखनी है? खुद को। लेकिन दूसरे देखने वाले तो नहीं चाहिए सब लोग, तो हम खुद है ना, हम खुद है, सबके साथ है, क्योंकि हमारे साथ वो उसके समय थे, सब नहीं थे, डायरेक्शन के समय नहीं थे, एक्टर सभी लोग थे, कोई नहीं थे। इसीलिए तो सब सामने आते हैं। क्यों हंसते हैं? सही बात है। हमारे ही सामने आते हैं। क्यों हमारे सामने आते हैं? क्योंकि हमारे देखने के लिए, हमारी ही फिल्म है, ये आवरण है। तो यहाँ पर दादा भगवान ने या ज्ञानी पुरुष ने कैसा पुरुषार्थ किया कि जिससे वो आवरण उन्हें अब रहा नहीं, कि परेशान नहीं करता? दादा भगवान का पुरुषार्थ अलग है, वो बात तो एक युग पुरुष, युग मीन्स सारा एज, इयॉन, एज के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, कहीं जन्मों से, कहीं लाइव से, ऐसे स्क्रिप्ट और फिल्म में, डायरेक्शन में वो सोलो एक्टिंग से रहे। कैसे रहे? ऑडियंस भी सोलो और खुद भी सोलो। सोलो एक्टिंग से रहने का मतलब क्या है? मतलब कि आगे और कोई नहीं दूसरा। तो अभी आज भी ऐसा ही रहा। उनके पास इतना ज्यादा ऑडियंस आया नहीं, कोई आता नहीं है उनके पास, तो उनको गड़बड़ कोई नहीं करता। ऐसा नहीं? अब क्यों सोचते हैं सूद में? डॉक्टर समझ गए। आपको क्या लगता है साहब? दोस्त बरोबर है, वो तो उनका कई जन्मों का निष्कर्ष से। सोलो मीन्स हमेशा जन्म जन्म में खुद ही खुद के साथ रहने वाले, वो बदलते वाले नहीं, बदलने वाले नहीं, खुद ही खुद के सोले में। और जो बदलने वाले हैं वो बहुत कम है, उनकी लिविंग भी ऐसी गई। वैसे नहीं कि बदलने वाले दूसरे आते नहीं थे, लेकिन वो उनमें नहीं थे, उन सबको खुद में समा लिए सोलो में। दादा भगवान ने पक्के, बड़े पक्के, और ये तो सिखाया हमें, ये तो हमें ज्ञान मिला, और ज्ञान के साथ ऐसी रहने के लिए रीत आसान सी बना दी, बिल्कुल आसान वाली, कि दिक्कत वाली है। समझ पीछे सब सरल है। बिना समझ ये समझ क्या मधु ये क्या बोलते हैं? देखो दिखा है ना, रीत तो अच्छी थी, कितनी इजी, आज्ञा इजी है ना, 2 व्यू पॉइंट के डिफिकल्ट है भैया। कीप विथ यू, जोर से बोल जे। इजी है। इजी है ना, लक्की पक्का। हाँ, मगर नहीं ने, मगर कुछ नहीं ने। देखो आते नहीं, वाइज है। भाई स्वामी जी, मगर कुछ करसन भाई कैसे आप आ गए? आपका वही कितने आए हैं? जगदीश ऐसा कौन? भूमिका लखीश कौन छे? आओ आगे आओ, समझ गई। और ऐसे रहने के लिए हमने बताया है आज्ञा धर्म में। आज्ञा धर्म वही है, हम ऐसे रह सकते हैं, किसी को भी बिना डिस्टर्ब करे हम स्टेबल हो जा सकते हैं।
बाकी सब लोग कितना भी डिस्टर्ब होना हो तो रहे, हम स्टेबल हो सकते हैं। जिसको रहना है उसके लिए तो आसान है, रिश्ता दे दिए। ये अच्छी बात बताई। लो, अच्छी बात बताई, गलत बात बताई हैं? गलत है, गलत है। दुनिया का दस्तूर दुनिया का है, हमारा दस्तूर हमारा है। हम दुनिया से अलग नहीं है, दुनिया के साथ साथ में है। दुनिया हमारे साथ में है, हम दुनिया में है, दुनिया मेरे साथ है, और क्या है। फिर भी दस्तूर हमेरा, एडजस्ट एवरीवेयर का एक दस्तूर हमेरा। जवाब आता है। पुलिन जी क्या बता दें? बहुत अच्छी बात है। तो और क्या बताएं? SMG कहाँ गए? नहीं आए? नहीं आए अरे आए हैं, आए बिना वो तो क्या बात करते हो? तो आएंगे। नहीं। देखो, ये भूमिका भाद्रण भूमि से आई है, दादा भगवान की। वो पूछती है प्रश्न, 4 प्रश्न है। भरत क्षेत्रीय वर्तमान में विचरते सर्वज्ञ श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्तिपूर्वक से नमस्कार करते हैं। परम पूज्य कन्नू दादा जी, जय सच्चिदानंद। नीचे दिए हुए सब प्रश्नों क्वेश्चंस है, उनको समझाने के लिए मेरी आपको विनंती है। नंबर 1, according to homeopathy, the definition of vital force is an automatic, spirit-like dynamic force. Vital force is an autocratic, spirit-like dynamic force, which is unintelligent but instinctive. આ डेफिनेशन છે હોમિયોપેથીમાં। ये होम्योपैथी की जो डेफिनेशन है, वो होम्योपैथी मेडिसिन साइंस उसका जो बेसिस है, वो सारा बेसिस सटल पार्टिकल्स पर है, मटेरियल पार्टिकल्स पर। और वो भी कैसे पार्टिकल्स? तो कि नॉन लाइव पार्टिकल्स नहीं, लाइव पार्टिकल्स के ऊपर है वो। कौन से? डू यू अंडरस्टैंड? जैसी अपनी क्षार पद्धति क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री वगैरह कुछ बोलते हैं ना, दूसरी पद्धति सिस्टम है ना, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? क्षार के क्या, ऐसी एक सिस्टम है। ऐसी होम्योपैथी है जला में। मुझे ऐसा समझ में आता है। आप क्या कहते हैं? इट इज बेस्ड ऑन लाइव मटेरियल, सटल मटेरियल पार्टिकल्स, लाइव, एंड इट इज in connection with the spirit, that too, in connection with the spirit, that is more important. That is the science of homeopathy. The homeopathy originally, I think, Germany, origination from Germany. दादा भगवान बताते थे कि ऐसी सटल फिजिकल फिनोमिना की पार्टी। साहब आ जाओ, पधारो, મૂકી દેજો ભાઈ। પદ્માબેન ને કઈ આવી જાવ તો અરે દિવસ બસ ત્યાં મૂકી દે ને, બસ આવો સાહેબ। પધારો 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 પધારો। અહીંયા મૂકી દેજો, ખુરશી એકાદ મુકાઈ હોય છે, ચાલશે નહીં તો અહીંયા આવો તમે। તમે બધા ચાલશો નહીં, એ છે દીકે તમે નીચે ફાવશે તો અહીંયા અંદર આવો એટલે ઠંડી ઓછી લાગે થોડા। બેસો, બસ, હા અંદર।
આવો થોડા આગળ અંદર આવતા એટલે પછી પગમાં પવન ઓછો લાગશે ખરું જ નહીં બહુ સારો ખૂણો આવો બહુ સારો આપણે ખૂણો ફરી કાઢીએ એટલે दादा ने बड़ा अच्छा रास्ता बताया है वर्ल्ड में ऐसा ही रहना जरूर है तो वर्ल्ड से कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे आप ठीक है ना तो होम्योपैथी साइंस स्पिरिच बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल कनेक्शन with live material subtle particles, live material, not non-live, live material. That is my understanding. I don't know what homeopathy is. हाँ जो यहाँ कोई जो जानते होंगे वो जानते होंगे तू जानती है तू पढ़ती है ना तो क्या बताता है वो उसकी डेफिनेशन ऐसा है अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी द डेफिनेशन ऑफ वाइटल फोर्स जीवन शक्ति उनकी व्याख्या ये दी गई है कि जीवन शक्ति वो है जो स्वयं संचालित है स्वयं से है और स्पिरिट लाइक एक डायनामिक फोर्स है स्पिरिट लाइक तो उसको वो लोग जैसा एस्ट्रल फोर्स बोलते हैं ना इज लाइक दैट एस्ट्रल फ्यूल लाइक इन ऑन दैट लाइन विच इज अनइंटेलिजेंट बट इंस्टिंक्टिव अनइंटेलिजेंट मीन्स उसका अर्थ है नेचुरल दे आर मोर बेस्ड ऑन नेचर होम्योपैथी एंड इंस्टिंक्टिव means bhav it goes on spirit linked definition to I want to know actual form of vital force सूक्ष्म शरीर क्या बताया वो वाइटल फोर्स है सूक्ष्म शरीर से सारी जीव शरीर की क्रियाएं चलती है अंदर की सभी के अंदर की और उसके वो लेवल पर एक होम्योपैथी बेस है ऑल ओरिएंटल सिस्टम्स उसके पर बेस है अपनी आयुर्वेद भी उसके पर बेस है मोर और लेस समझे तो जीवन शक्ति तो किसी को मालूम नहीं मेडिसिन में नहीं आएगी वो चीज़ नहीं मेडिसिन रिलेट्स खाली ग्रॉस बॉडी पर है ना स्थूल शरीर इफेक्टिव बॉडी कारण शरीर समझे हाँ और जो कारण शरीर है उसके साथ संलग्न उसमें इंस्टिंक्टिव जो पार्ट है वो कारण शरीर से संलग्न है सूक्ष्म है कशो वांधो नहीं सूक्ष्म शरीर वो कारण शरीर के साथ संलग्न होने के हिसाब से इंस्टिंक्टिव है कैसा है और सूक्ष्म शरीर है वो मोर एकिन टू नेचर है कुदरत शरीर के अंदर क्यों कि वो हमेशा साथ में रहने वाला है जहाँ तक संसार है चालू ही है संसार महीना जहाँ तक संपूर्ण मुक्ति है वहाँ तक आत्यंतिक मुक्ति के कारण तक वहाँ तक सूक्ष्म शरीर साथ ही रहता है ज्ञान होने के बाद भी केवल ज्ञान होने के बाद भी रहता है जहाँ तक शरीर है शरीर के कारण वो होना ही है जब उसका काम बिल्कुल खत्म हो जाता है तभी वो निर्वाण संपूर्ण मुक्ति हो जाती है अभी समझ गए चलो दादाजी आपको रिलेटिव का कोई भी
रिलेशन में अर्थात एक्टिविटी में इंटरेस्ट न होवे फिर भी आप वही बात में हमें आप इंटरेस्ट वाले हो, ऐसा हमें से ज्यादा इंटरेस्ट वाले लगते हो। तो आपने ऐसी कौन सी अरेंजमेंट की है, ऐसा प्रश्न है। उनका प्रश्न है। ये आज्ञा धर्म और कुछ नहीं। भूमिका तू तो पढ़ती है होम्योपैथी, समझती है ना? आज्ञा धर्म, आज्ञा धर्म कितनी मजे की बात है। उसमें किसी की दखलगिरी नहीं है, बाहर से कोई दखल नहीं कर सकता, उसको कर सकता कोई भी। घरेलू संबंध में, कितना भी घरेलू संबंध में हमें चढ़ाव उतार, ऊंचा नीचा कहीं भी प्रकार का हो, फिर भी कोई ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है? हमें अंदर से आज्ञा धर्म से रहना हो तो इनसाइड बोल दे, so that makes life wonderful. You understand? Non-involved. How? Otherwise, वो जीवन है, वो जीवन उसकी जो नेचुरलिटी है वो आप जॉयफुली एंजॉय नहीं कर सकते। सिंगुलरली, बिकॉज आपका अंदर का ब्लिसफुल स्टेट है, उसमें आप पक्के हो गए हो। जो आपको ग्रेस प्राप्त हुई है, कृपा प्राप्त हुई है, वो कृपा आपकी स्टेबलाइज हो गई है, अंदर डाइजेस्ट हुई आज्ञा धर्म के कारण से, उसके जीवन के आज्ञा धर्म के प्रभाव से वो डाइजेस्ट होती जाती रही। 2 व्यू पॉइंट्स पर्टिकुलर फाइल, उसका अकाउंट डिस्पेंस होता जाता रहा। उसमें हमारी लाइकिंग नॉन लाइकिंग में से हम निकलते जाते रहे। ठीक है, आस्ते आस्ते आस्ते, एकदम तो नहीं होता है। और व्यवस्थित शक्ति ही करता है, वो हमारे पक्के अनुभव में आता रहता है। इस ढंग से बनता है ये सब। और शुद्धात्मा का चौपड़ा हमें ख्याल नहीं रखना है, ऑटोमेटिक बना रहता है शुद्धात्मा का चौपड़ा। इवन निंद्रा में हो, जागृत में हो, सभी समय तो चालू ही है, वही चौपड़ा है। रिलेटिव का चौपड़ा नहीं है, और फिर भी रिलेटिव में है। सब बातें करते हैं, व्यवहार की सबके साथ बातें करते हैं, क्यों नहीं कर सकते? सात्विक सबके साथ है, क्यों नहीं? हमारे ही है, ये ऑडियंस हमने ही बुलाया है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से आए कोई। क्यों हंसती है? खुद का है तो समझिए ना। नंबर दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, भाद्रण सनातन संस्कार केंद्र जो बन रहा है, वहाँ आप सभी बालिकाओं को, लड़कियों को और छोटी छोटी लड़कियों को सत्संग करने के आपने बताया है, करने के लिए बताया है। तो उसके लिए हमें कौन सी कैसी लेसन की तैयारी करके जाना और कौन सी प्रेयर्स करनी, ऐसा बताया है। वो तो हमारे आपता पुत्र सब करेंगे, उसके प्रमुख आचार्य है डॉक्टर साहब है, वो उनका सिलेबस तैयार करने वाले हैं, वो मतलब कर देंगे थोड़े फॉर ग्रेड्स। केजी, सीनियर केजी, जूनियर केजी का एक अलग होगा, फर्स्ट एंड सेकंड का एक अलग होगा, थर्ड एंड फोर्थ का एक अलग होगा, समझे ना? पीछे फिफ्थ और सिक्स का एक अलग होगा, 7, 8 1 more, then 9 to 12 like that.
સરીબેન ઇઝ ઓકે ચાલે पीछे कॉलेज वाले का अलग, कॉलेज वाले अलग, यूनिवर्सिटी बनाएंगे। उसमें कहीं पोर्शन तो ऐसा होगा जो बहुत सा कॉमन होगा फ्रॉम बिगिनिंग, वो तो रिपीट होता ही जाता रहेगा, लेकिन एडवांसमेंट होता जाएगी जैसी ग्रेडेशन ऊपर आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसी हमारी एजुकेशन में है वैसे ही स्कूल में ऐसे ही है ना, ऐसा ही उसमें होना चाहिए, समझे? लेकिन बेसिकली शुरू से ही केजी क्लास से ही जो फाउंडेशन करना है, तो फाउंडेशन का मटेरियल तो वहाँ से ही दिया जाएगा, वेरी इसेंशियल। वो इतना दिक्कत वाला नहीं है, उनको आसानी वाला करके वो देते जाएंगे, वो उनका काम है, शाह साहब का काम है। शाह साहब आप करेंगे? हाँ करेंगे, तो जरूर करेंगे। अभी स्कूल का अभी समर में चालू होगी, करेंगे। जगदीश भाई तो बोलते हैं चालू कर लेते हैं, अभी अर्जी हो गई है सब कुछ चाल, हाँ बरोबर है, चलो ठीक है। वो प्रिंसिपल आए हैं, कहाँ है प्रिंसिपल? अच्छा अच्छा, काम करने वाले हैं? अच्छा, और विपुल कहाँ है? अच्छा, सबको 15-20 साल का अनुभव है, सबको काम लोकल में है ही। और लास्ट क्वेश्चन है, एग्जैक्टली वाइटल फोर्स, सूक्ष्म शरीर, इलेक्ट्रिकल बॉडी और कॉजल बॉडी, कारण शरीर, वो दोनों के लिए वैज्ञानिक अंडरस्टैंडिंग आप हमें दो तो अच्छा रहेगा, ऐसा बताया। तो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की समझ तो यही है कि सूक्ष्म शरीर जो है वो संसार के अंदर, संसार की सारी स्थूल शरीर की हिसाब से, स्थूल शरीर से जो संसार की सारी क्रियाएं हैं और संसार बना रहता है, वो बने रहने के लिए वो सूक्ष्म शरीर हमेशा होता ही रहता है। संसार नहीं, लेकिन शरीर और शरीर की क्रिया, शरीर की क्रिया संसार के लिए भी है, और संसार से मुक्त हो जाने के बाद, मुक्ति पाने के बाद, वो मुक्ति के समय से शुरुआत से आखिर संपूर्ण मुक्ति हो जावे, अर्थात केवल ज्ञान हो जावे, वहाँ तक सूक्ष्म शरीर की जरूर है स्थूल शरीर के लिए। और स्थूल शरीर वो कुदरती क्रम के हिसाब से रहने के लिए, वो मुक्ति प्राप्त करने के बाद तैयार होता जाता रहता है। वो किस ढंग से? आज्ञा धर्म से, नेचुरल, अपनी स्थूल शरीर की लिविंग यही संसार में नेचुरल बनती जाती रहती है, और फाइनल टाइम उसका आता है तो संसार और सभी संबंधों से वो आखिर लास्ट लाइफ में वो सब संबंध उसको से मुक्ति ले लेता है, और खाली एक खुद रह जाता है। जैसा साहब ने पूछा दादा भगवान कैसे रहे थे, वो वैसे रहे थे, वैसे नहीं कि वो सबके साथ नहीं रहे, लेकिन अंदर से वैसे रहे। तो अभी ये महात्माओं के लिए ये बात आखिर के जन्म में आएगी, वो निश्चित आती ही है, वो एक नेचुरल लॉ है। डू यू फॉलो? इट इज नॉट टू बी मेड, इट इज ऑलवेज देयर। उनको बोलते हैं अल्टीमेट फाइनल रिनाउंसमेंट फ्रॉम ऑल रिलेशंस, सभी संबंधों
का परित्याग, ऐसा उसको बताया। क्या बताया? और केवल शरीर का संबंध रहा, केवल शरीर का, अंदर का सूक्ष्म शरीर के साथ वाला। तो जो केवल शरीर का संबंध रहा, वो चलाने के लिए भी वो सूक्ष्म शरीर तो होना ही, तो होता ही है। लेकिन केवल जो शरीर का संबंध रहा और केवल ज्ञान हो गया, उसके बाद वो जो शरीर का संबंध में बाकी नेचुरलिटी रही, वो कौन सी? तो आखिर लास्ट फेज वाली जो टोटली कंप्लीटली फेज आउट हो जाने वाली। अभी समझ में आए? ऑल द सफरिंग पार्ट ऑफ दैट बॉडी आफ्टर केवल ज्ञान, suffering part, do you understand? Suffering in this sense, suffering is always there, but केवल ज्ञान होने के कारण मैं शुद्धात्मा हूँ, वो एब्सोल्यूट फॉर्म में रहता है। कैसा? That means total freedom from time, relative time. That means total from relative time. With relative time, जिससे ये स्थूल शरीर जुटा हुआ है, उससे बिल्कुल मुक्त हो गए, इसीलिए एब्सोल्यूट अंदर से हो गए। समझे? समझ में आया? फिर भी उसमें थोड़ी लाइफ बाकी है, लाइफ का पोर्शन इतना रहा, दैट्स इट। अभी समझ में? और लाइफ का पोर्शन बाकी रहा, तो उसका जो वर्च्यूज है बॉडी का, वो वर्च्यूज तो रहना ही है। तो बॉडी का वर्च्यूज नेचुरल 100% नेचुरल फॉर्म में आ गए और फेज आउट होने के टाइम पर आ गए टोटली। ये फॉल सीजन में वृक्ष का फॉल सभी लीव्स हो जाते हैं, तो बिना लीव्स पूरा ट्री हो जाता है ना फॉल सीजन में। ये तो सीजनल है, लेकिन ये अल्टीमेट एंड फाइनल है। अभी समझ में आते? एवरी मॉलिक्यूल ऑफ द बॉडी ऐसा निकल जाता है, और व्हेन एंड कम्स, इट्स टोटली कंप्लीटली गॉन, एंड द बॉडी सेपरेट and the soul is totally liberated. And a liberated soul cannot remain in this universe, which is full of material particles. Body building block, material particles. कैसे? Full all around, everywhere, whole universe. Or beyond that, where there are no particles at all, only space. The Shuddhatma soul, totally liberated, gets positioned there. That's it. See? Automatically. In its infinite blissful state. What state? Infinite. Is it good? Huh? Tell true. Is it good? Mummy, is it good? Yes. Sapna, is it good? Good. પછી खुद दुखी। मैं अनंत सुख वाला ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, ये अपना पर वहाँ पक्का हो जाएगा। मैं अनंत सुखधाम ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, वो वहाँ है। यहाँ है, लेकिन ये शरीर के अंदर होने के कारण ये हमें इतना महसूस, वहाँ जो फुल ब्लिसफुल स्टेट वैसा होता है, वैसा यहाँ महसूस नहीं हो पाता। एक्सपीरियंस हो सकता है, ये वर्ल्ड में होते हैं, फिर भी वर्ल्ड के साथ नहीं, हम मेरे साथ है। सारी सिनेमा में सब देख रहे हैं, और सभी भी देख रहे हैं, सभी को मालूम है हम हमारे अकेले हैं, फिर भी सब फीलिंग्स से तो एक दूसरे से जुटे हुए हैं।
हम ऐसे एक दूसरे से जुटे हुए नहीं अभी, नहीं करो इसलिए। लो आपका क्वेश्चन हो गए आप लोग, भूमिका ने क्वेश्चंस तो अच्छे लगाए। हाँ जाओ आपकी जगह पर। मानते हैं कि आप पीड़ा के दौर से गुजर रहे हैं। पीड़ा के दौर में से आप गुजरे आप आज भी गुजर रहे हैं, ऐसा हम मैं गुजरा हूँ। हम मानते तो इसमें आपने हर वक्त ऐसा ही बताया है कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन जिसको होता है उसको हुआ। तो आप इस अव्याहमान सुख का अनुभव का कुछ विवरण हमारे पुरुषार्थ के लिए करें तो हमें बहुत। वो तो अपना सुख वाला स्वभाव का भाग है, सुख वाला स्वभाव है ना, वो सुख वाला स्वभाव के कारण है, अंदर इतना स्टेबल हो गया है। तो हमारी महसूस में तो वही है पक्का। ऐसे प्रसंग के समय भी हम देखते रहे कि गाड़ी है इतनी स्पीड से 110 की स्पीड से जा रही है और उनके हाथ में अभी रही नहीं उसके कंट्रोल, और निकल जाती है, आराम से निकल जाएगी, अभी इतनी स्पीड से जाती है। और बैंक था बड़ा 6-7 फुट नीचे थी, बैंक से नीचे ज़मीन, ओरिजिनल लैंड। तो मैंने सोचा कि नीचे चली जाएंगे इसी करके, मुझे मालूम नहीं था को रेलिंग है, बस इतना ही। बस ये तो एक सेकंड्स की बात थी ना, सेकंड्स, ज़्यादा समय नहीं लगता उसको। ऐसा करके दूसरी लेन में जाके सीधी और ऐसी गई और फास्ट गई, और हमने सोचा हो गए, बरोबर है, गई नहीं, उसमें तो रेल से डैश हो गई विथ सच ए ग्रेट इम्पैक्ट, बस हो गया। वो हो गया फिर भी तो अंदर का तो सेंटर था, लेकिन शरीर जहाँ है तो वहाँ तक वो शरीर जो तो हलने वाला भाग है ना, वो बना, लेकिन बहुत नेचुरली बना वो। मैं आगे डैश हुआ सीट के साथ, पीछे को दरवाज़ा और सीट वाली मुझे पीछे वो रिब्स में लगी, थोड़ा इतना हुआ बस, और ऐसा कुछ नहीं बना, ऐसा ही लगा, और जैसा नॉर्मल ही हुआ ऐसा पीछे हो गया नहीं। और मैंने आपको देखा कि टूट गया था, आगे का भाग सब टूट गया, बैठ गया, और आप लोग को क्या होगा, मुझे ऐसा लगा, हरीश भाई को, दीपक भाई को क्या होगा। मैं आपके लिए देख रहा था, खुद का नहीं था मेरा, आप दोनों का। और मैंने सोचा, देखा कि चलो अच्छा है, तो कुछ नहीं होगा, काश बास टूट गया, और आपको निकलता देखा आराम से। आपको जो मालूम नहीं था वो तो मुझे बहुत अच्छा मालूम था, बिल्कुल अच्छा। आप उस समय नहीं जानते कि क्या क्या हुआ। मैं उसमें था और नहीं भी था, दोनों समय, दोनों तरफ से था। हाँ, ये कुदरत है। दादा भगवान का कितना बड़ा एक्सीडेंट था, कितना बड़ा, लेकिन कहीं से आगे ही बैठे थे वो, तो दरवाज़ा खुला और थोड़ा हाफ बाहर ऐसे, और उनकी तो जीप पर असर थोड़ी हुई, इतना ही बस, और कुछ नहीं बना। फिर भी इम्पैक्ट तो आ गया है ना, तो ब्लड अगर थोड़ा हो गया, इतना ही ना हुआ बस। रसिक भाई को ज़्यादा लगने वाला था, बच गए। सबको थोड़ा थोड़ा तो हुआ ना। भरत भाई, वो तो आंकला में ही ले गए उसको तो सीधा। भरत भाई साहब थे। दादाजी आप ऐसा बताते थे कि जगत ने, दादा भगवान आए तो हमने देखा, देखो ना, सीधा सयाजी हॉस्पिटल में आए, सब गए, हमें बताया, मैं भी सीधा गया, तो मुझे भी ऐसा ही लगे ना, अरे ऐसा हो गया, एकदम भागे। चंद्रकल भाई सीधा फोन आया, भाई ऐसा हुआ है। अरे भाई, आप बताते थे कि दुख का अभाव जगत ने देखा है, लेकिन सुख का सद्भाव जो शुद्धात्मा का स्वाभाविक गुण है, उसका तो क्या कहना, ऐसा करके आप बताते थे। वो शब्द में नहीं आ पाता, वो हम खुद हर एक महात्मा वो अपने उसका स्वाद ले सकता है, हर एक महात्मा, वो शब्द में
उसका डिस्क्राइब नहीं किया जाता, एक्सपीरियंस है। इसीलिए आत्मा हर एक की अलग है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, स्वभाव से एक है। ये बात बहुत अति महत्व की है। इसीलिए और समझ में आवे इसी बात है, समझ में आवे इसी बात। ये बोलते हैं इतने बड़े भारत में हम चेतन परमेश्वर के अंश है। देखो साहब, समझने की बात है, सारा भारत में आज चल रहा है। अंश नहीं, हम स्वतंत्र है। हमारी परमात्मा शक्ति स्वतंत्र है। आत्मा से परमात्मा बताया, लेकिन ऐसा बोला नहीं जाता और किसी को बताया नहीं जाता और किसी को गाइड होने के लिए, ऐसा होने के लिए कहा भी नहीं जाता। नहीं तो गुमराह हो जाएंगे सब। अपने स्वयं कोई आत्मा परमात्मा नहीं बन पाता, कोई नहीं हो सकता, समझे ना। जो आत्मस्वरूप हुए हैं वो आत्मस्वरूप हुए हैं, वो परमात्मा स्वरूप तरफ की गति में आ गए हैं। उसका परमात्मा खुला होता जाता रहता है, ऐसी बात है। ये लोग आत्मा सो परमात्मा बोल के इस ढंग से बात बता देते हैं। अच्छे अच्छे लोग सब है ना, ऐसा ही है ना। जैन 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 लोग भी ऐसे बोलते हैं, संकित, स्वयं संकित हो जाए। स्वयं तो कैसा संकित हो सकता है? अरे भाई रजनी भाई बैठे ना, आप कहाँ जाएंगे? फ्लाइट आप जाने, चलो निकल जाओ, जाओ 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 जाओ। समझे? बहुत क्या टाइम हुआ? बस हो गया है 10। मजे का है कि उनका। चलो करसन भाई, जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वायरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साउणम, ऐसो पंच नमुकारो, सर्वपावपणासनो, मंगलाणं च सर्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बुलाओ।